गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा मैंने इसके पहले भी कहा था कि आज से जेई का नया सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहला टॉपिक हमारा है लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहले देखते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, पहले देखते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। देखिए, अगर मान लीजिए कोई बॉडी जिसका मास m है, दिस इज एनी बॉडी whose mass is m and it is moving with a certain velocity v. It is moving with certain velocity v. Then the momentum of this body is we write it by p, and this is equal to mass time velocity. ये लीनियर मोमेंटम इस बॉडी का हुआ। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट होगा, मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट, एसआई यूनिट फॉर मोमेंटम. So this is a no doubt a vector quantity. Momentum is a vector quantity. It will have both magnitude and direction. तो किसी बॉडी का अगर लीनियर मोमेंटम निकालना है तो हमें मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, हम मल्टी मास टाइम्स वेलोसिटी करेंगे तो उसका लीनियर मोमेंटम निकल आएगा। इसी तरह से नाउ अगर हम देखें मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम कैसे निकालेंगे, दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. So in system of particles, you will not have a single particle, but you will have a collection of particles. There will be many particles in this system, and you have to find the linear momentum of this system. For example, if you have masses m1, m2, m3, m4, mn, it means we have a system in which n particles are taken, and each particles are having masses m1, m2, m3, m4, and mn. No doubt, every particle would be moving with the different velocities. For example, if m1 is moving with v1, m2 is moving with v2, m3 is moving with the v3. No doubt, velocity is a vector quantity. So you can have different velocities of all the different particles. It means all particles would be moving in the different directions. So all these particles would be having linear momentums in different directions. Let m4 is moving with velocity v3 and mn is moving with velocity vn. So now we can find the momentum associated with each particles, and if we find the momentum associated with each particle, and finally we sum it, then we get the resultant momentum of the system. For example, if we have to find the momentum of a system, then you have to add the momentum of each particles. You have to add the momentum of each particle, and this addition should be the vector addition because momentum is a vector quantity. So you have n particles, so every particle will have momentums. For example, the first one will have m1 v1, second one will have m2 v2, and so on. Then the momentum of system will be equal to how much? m1 v1, m2 v2, and the last term will be mn vn. You can finally write it in this form: summation I equals 1 to n m1 mi vi vector. This is the momentum of the whole system. This is the momentum of whole system. One more thing you know from the center of mass concept, that the velocity of the center of mass is given by
M1 V1, M2 V2 dash dash Mn Bn. So finally, and all these quantities should be divided by the total mass of the system also. Means M1 V1 plus M2 V2 dash dash Mn Bn divided by M1 plus M2 dash dash Mn. So you can write it in this form. Summation I equals 1 to N Mi Vi divided by total mass of the system. Finally, you can write MVCM. Actually, MCM is taken in LHS side. So MVCM will be equal to summation of all these terms. And I should be starting from 1 to N. So finally, you can write this summation term equal to MVCM. VCM is what? VCM is the velocity of the center of mass of system. VCM क्या है? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है. M क्या है? M है टोटल मास of the system. M is the total mass of the system. So you can put in this equation, you can put the value of this term, which is equal to MVCM. So finally, write it the equation first and write it the equation second. Finally, you can put the value of this summation term in the equation first, and you will get the momentum of the system equals to, from the equation first, you can get the momentum of the whole system is equal to M times VCM. M times VCM. So this is the simple equation to find the momentum of the whole system. How can you find it? If we are knowing the velocity of center mass, or if we are able to calculate the velocity of the center mass, then velocity of the center of mass when multiplied by the total mass of the system, we get the momentum of the whole system. I think this point is clear to everyone. So here we have discussed the momentum of a particular body and the momentum of the system also. I think that these 2 points are clear to everyone. Okay. चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी. Let us consider a body. Let us consider a body. This body, this is moving with the velocity v. This body is moving with velocity v. देखिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है. अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो हम मानेंगे कि ये वेलोसिटी इस बॉडी की एट टी इंस्टेंट टी है. टी इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी है. तो इस इंस्टेंट पे इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ द बॉडी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे क्या होगा? इज, चलिए अब हम इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में. सो dp बाई dt इक्वल्स t बाई dt mv. अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट है, यानी सिस्टम का मास ना तो विद द टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं और इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं. तो आपने m को बाहर निकाल लिया, तो आपका रिजल्ट आ गया m dv बाई dt. dv बाई dt एक्सेलरेशन है. जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा. सो नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. So you can write dp by dt equals mass time acceleration of body, which is resultant external force acting on the body. Okay. So from this relation, what can you say? You can say dp by dt equals f external. dp by dt equals f external. If external force acting on the body is zero,
if external force acting on the body is zero, if resultant external force acting on the body is zero, then what can you say? Then the rate of change of momentum will be zero. Okay, when resultant external force on the body is zero, then we can say rate of change of momentum will be zero. This gives you P equals constant. देखिए बेटा, अगर किसी बॉडी के मोमेंटम का चेंज का रेट जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ? उसका मोमेंटम विद द टाइम चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो मोमेंटम कांस्टेंट है. सो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स कांस्टेंट. P कांस्टेंट मींस व्हाट? कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा. कब नहीं होगा? जब बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो, यानी किसी बॉडी पे अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा. इफ रिजल्टेंट फोर्स acting on a body is zero, then its momentum will remain conserved. Momentum will remain conserved. और इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अगर किसी बॉडी या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो, यानी चेंज ना हो, तो इसको हम कहते हैं कि उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व. ठीक है, तो किसी सिस्टम का या किसी बॉडी का मोमेंटम कब कंजर्व होगा? जब उसके ऊपर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जीरो. अगर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे जीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होगा. अब आपको थोड़ा सा जनरलाइज करके इसी को समझना होगा. यानी हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, एक बॉडी का नहीं. अब हम सिस्टम के मोमेंटम का कंजर्वेशन को समझेंगे. तो हम क्या देखेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिस्टम का मतलब होता है कि आपके पास कई पार्टिकल्स हैं, कई पार्टिकल्स हैं. मान लीजिए आपके पास M1 है, M2 है, M3 है, Mn है. यानी कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं. तो अगर हर पार्टिकल्स की कुछ वेलोसिटी हो, मान लीजिए M1 V1 से मूव कर रहा है, V2 से, M3 V3 से, Mn V4 से मूव कर रहा है. तो क्या इस सिस्टम का कंजर्वेशन मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या होगा, ये हमें देखना है. ठीक है, तो अगर हमें ये कहें कि इसका मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे पूरे सिस्टम का, तो इसके लिए तो अभी हम लोगों ने देखा था कि P इक्वल्स M1 V1 M2 V2 डैश डैश Mn Vn, यानी सारे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाल के का वेक्टर रिजल्ट. या आप इसको ऐसे लिख सकते हो P इक्वल्स P1 प्लस P2 एंड फाइनली Pn. फाइनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. मान लीजिए अगर आप इसको समेशन के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप J की वैल्यू 1 से n तक वेरी कराओ. तो ये आपका पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हो गया. अब मान लीजिए इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे? dp/dt इक्वल्स समेशन J इक्वल्स 1 to n dpj/dt. और dpj/dt क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द jth पार्टिकल. इस बात को समझना बेटा. यहाँ पे जो dpj/dt की वैल्यू क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल अभी हम लोगों ने देखा? रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो dpj/dt की वैल्यू होगी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द jth पार्टिकल. ठीक है, यहाँ पे जो आपने सिस्टम लिया है उसमें कई पार्टिकल्स हैं, कई पार्टिकल्स हैं. आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड nth पार्टिकल ऐसे दिखाया था. तो यहाँ सर्टेनली आपके पास, मान लीजिए कि हम दो पार्टिकल्स अगर कंसीडर करें, एक पार्टिकल आइथ कंसीडर करें, एक जेथ कंसीडर करें, आइथ और जेथ. तो देखिए इन आइथ और जेथ के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं?
देखो, हमें इस जेथ पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पहले देखिए। तो जेथ पार्टिकल पे मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिसको हम लिखेंगे ये। और एट द सेम टाइम इन दोनों के बीच, आई तो जेथ पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन भी होगा। जैसे कि अगर मान लो कि ये मासेस हैं, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकता है। तो देखिए, ith पार्टिकल जेथ पे एक फोर्स लगाएगी, इंटरेक्शन फोर्स लगाएगी, दैट इज जे आई, हम ऐसे लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जेथ पार्टिकल पे ith ने इतना फोर्स लगाया। इसी तरह से ith पार्टिकल पर भी जेथ फोर्स लगाएगा, उसको आप लिख सकते हो एफ आई जे। अब ध्यान देना, ये फोर्सेस यानी एफ आई जे यानी ith पे जेथ के कारण और जेथ पे ith के कारण इनका वेक्टर सम जीरो होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमें देखो जेथ पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स देखना है। तो जेथ पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? जेथ पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जेथ पे एक्सटर्नल फोर्स और प्लस जेथ पे ith के कारण फोर्स। लेकिन ध्यान देना, केवल ith पार्टिकल जेथ के आसपास तो है नहीं, और भी पार्टिकल जेथ के आसपास है, तो उनके कारण भी इंटरेक्शन फोर्स अगर लिखना है जेथ पे, तो देखो इस फोर्स का समेशन करो। जेथ सराउंडेड बाई ऑल अदर पार्टिकल्स के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो निकालने के लिए इस जेथ पार्टिकल पे ith पार्टिकल के कारण जो फोर्स है इसका समेशन करोगे और आई को वेरी कराओगे 1 to n। लेकिन आई जे के बराबर तो हो नहीं सकता। अगर आई जे के बराबर होगा तो सेम पार्टिकल खुद पे फोर्स लगाने वाला टर्म आएगा। इस वजह से हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे कि आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो देख बेटा, ये जो एक्सप्रेशन आया, ये जेथ पार्टिकल पे नेट फोर्स है। अब यहाँ पे आप देख लो, आप ये जो टर्म है यानी डी पी जे बाई डी टी, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द जेथ पार्टिकल, यानी दिस वन। सो व्हाट कैन यू राइट? dpj by dt equals this summation. This summation is over j from 1 to n, and this bracket is actually fj. So finally you will put the value of fj. So this comes out to be summation j equals 1 to n, and in a bracket fj external plus summation I is equal to 1 to n, where I is not equal to j, and here you will write f j comma I. So this is dpj by dt, and here bracket close. देखिए, अब इस समेशन को अगर हम देखें तो ये समेशन ब्रैकेट के अंदर जो जाएगा तो पहले टर्म के साथ भी जाएगा, दूसरे टर्म के साथ भी जाएगा। सो फाइनली आप क्या लिख सकते हो? डी पी बाई डी टी इक्वल्स, ये समेशन इस टर्म के साथ भी जाएगा तो आप लिखोगे j इक्वल्स 1 to n एफ जे एक्सटर्नल प्लस एक समेशन यहाँ लगाइए, यहाँ j इक्वल्स 1 to n करेंगे और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखिए, चाहे ऐसे ही लिख लीजिए, i इक्वल्स 1 to n एफ जे जे कामा आई, और आई पे कंडीशन होगी आई कैन नॉट बी इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये फाइनली एक्सप्रेशन आया। देखिए, अब जहां तक ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है लास्ट टर्म, ये टर्म किस तरह का होगा? तो देखिए, अभी हम जेथ की बात कर रहे थे, तो जेथ पे जो इंटरनल फोर्स था, देखिए आयथ पार्टिकल था और ये जेथ पार्टिकल था। तो जेथ पे एक फोर्स, इंटरनल फोर्स लग रहा है आयथ के कारण, इसको आपने लिखा था एफ जे आई, और आयथ पे जेथ के कारण एक फोर्स था, वो था एफ आई जे। और हमने देखा था कि अगर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये जीरो आएगा। ये जीरो क्यों आएगा? क्योंकि ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है, ये जीरो आएगा। देखो, जब इस एक्सपेंशन को आप करोगे, इस एक्सपेंशन को जब आप करोगे, इस एक्सपेंशन को, तो आपको ऐसे ही टर्म्स पेयर में आएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ आएगा F12 प्लस F21, इसी तरह से सारे पॉसिबल पेयर्स का सम आता जाएगा।
और निश्चित है कि उन सारे पॉसिबल पेयर्स का सम क्या होगा, फाइनली 0। सो फाइनली देखो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, दिस टर्म इज द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल द इंटरनल फोर्सेस। क्या बोलेंगे इसको, रिजल्टेंट ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, और ये पेयर में अपीयर होंगे और इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। सो दिस होल टर्म इज 0। सो फाइनली व्हाट कैन यू राइट, you can write dp by dt equals to summation g equals 1 to n f g external, and you can further write it f1 एक्सटर्नल यानी पहले पे एक्सटर्नल फोर्स प्लस दूसरे पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स प्लस nth पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स, nth पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स, इन सबका रिजल्टेंट हो गया ये। समेशन का तो यही मतलब होता है। तो नाउ दिस इज dp by dt। क्या मतलब हुआ, सिस्टम पी क्या था, पी था सिस्टम का रिजल्टेंट मोमेंटम। तो सिस्टम के मोमेंटम में चेंज का रेट यानी डीपी बाई डी, ये किसके इक्वल हुआ, ये अगर इन सारे फोर्सेस इंडिविजुअल पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम निकालोगे तो पूरे सिस्टम पे रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। इट मींस डीपी बाई डी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के मोमेंटम में चेंज का रेट सिस्टम पर लगने वाले रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे हम वही करेंगे, इफ क्या करेंगे, यदि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, if resultant external force acting on the system is 0, then dp by dt comes out to be 0। यानी कि अगर सिस्टम पे रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी 0। इसका क्या मीनिंग होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 का मीनिंग होता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। सो क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम पे 0 हो तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो फर्दर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंगल पार्टिकल के लिए देखा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखा। दोनों में आपका कॉन्सेप्ट यही निकल के सामने आता है कि अगर सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, अगर सिस्टम पे रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, या अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स 0 तो उस बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए अब इसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे जो प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की वीडियो तो यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए अब हम नेक्स्ट डे यानी कि कल उसके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ओके बेटा, ओके, थैंक यू एवरीवन।